Hello, everybody. I hope you guys are doing fantastic. I'm also doing great. So, in case you're coming to Canada as a student or you're coming here as a PR and you don't know the starting point as to where you should start from for getting a job, well, you are not alone, and there are a lot of people who are doing that. I am no expert. I am basically just doing it for my own self. Hence, I am also researching on it. तो मैंने सोचा यार ये रिसर्च कर ही रहा हूँ तो आपके साथ भी शेयर करता हूँ. So I'm going to make a series of videos on different roles in banking and financial sector as a whole. So this is the first video out of all those videos. So I'm going to talk about different roles in these videos, what kind of work that you can expect in those roles, what are the salaries that you can expect in those roles, what are the education and the certifications that you might require for these roles to actually crack them. वेल आइडिया सिर्फ इतना है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मेरे को पता लगता जा रहा है. मैंने कुछ दिन पहले ये वाला वीडियो पोस्ट किया था ऑन IFC कोर्स दैट आई हैड डन विच वाज बेसिकली इन्वेस्टमेंट फंड्स इन कनाडा. ये बेसिक बैंकिंग कोर्स होता है इफ यू वांट टू गेट इनटू एडवाइजरी काइंड ऑफ अ रोल इन कनाडा. लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी, स्पेशली द स्टूडेंट्स and the people who are going to come as a new PR to Canada, about what can be the starting point for them as in where to start from if they want to start in the financial sector or even if they want to make a career in financial sector. So since I was also researching about it and I am also researching in the other fields, तो मैंने सोचा यार मैं आपके साथ भी share कर देता हूँ so that it will be helpful for you too. So in this video I'm going to talk about the financial sector and also bits and pieces में मैं बताऊंगा कुछ roles के बारे में अभी, then in the coming episodes about the other roles which I know about. So guys, this is just a humble effort and in case you like this effort, do subscribe to my channel and in case you've already subscribed and you're coming back, I hope मैं इस वीडियो में भी आपको कुछ तो वैल्यू ऐड कर पाऊँ जो कि शायद मैंने पिछले वीडियोज़ में किया था, जिसकी वजह से आप शायद मेरा वीडियो दोबारा देखने आए हो. So guys, the financial sector in Canada is no different from financial sector anywhere in the world. So पहले समझते हैं कि financial sector या financial ecosystem है क्या. मतलब कि financial sector में कौन कौन से kinds of organizations होते हैं और उनमें क्या क्या roles होते हैं. So the first type of organizations in the financial ecosystem are the retail bank. ऐसे 6 तरीके के होते हैं. And the second type is the mutual fund dealerships. The mutual fund dealership का मतलब है कि mutual fund organizations which manage the mutual funds or which sells the mutual fund. Other than that, you have investment dealerships. These are the organizations जहाँ पे लोग अपने investment करते हैं in different products and these are the organizations which manage the investments for them. इसके अलावा होता है insurance organizations. These are typically large insurance corporations or the agents, somebody who sells the insurance for the insurance organizations. And then you have commercial banks जो कि retail bank से different होते हैं because retail bank में consumers होते हैं आपके और मेरे जैसे, और कमर्शियल बैंक्स में तो कंज्यूमर होते हैं, दे आर बिग कंपनीज एंड हेंस दीज आर वेरी स्पेशलाइज काइंड ऑफ बैंक्स. अदर देन दीज देर आर सम अदर रोल्स जो कि रिस्क में होता है या ऑपरेशंस में होता है. वेल ये थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, इसीलिए वी विल कॉन्सेंट्रेट मोस्टली ऑन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस, रिटेल बैंक, म्यूचुअल फंड डीलरशिप्स एंड इन्वेस्टमेंट डीलरशिप्स. इन केस यू वांट मी टू डिस्कस दीज टू ऑल्सो, आई विल डेफिनेटली रिसर्च ऑन देम टू. सो आज हम डिस्कशन करते हैं अबाउट रिटेल बैंक बिकॉज रिटेल बैंक्स में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ जॉब्स होती हैं. तो रिटेल बैंक में यूजुअली ब्रांच बैंकिंग लेवल पे जो जॉब्स होती हैं दे आर ऑफ 3 काइंड्स. द फर्स्ट काइंड ऑफ जॉब्स दैट यू फाइंड इन अ रिटेल बैंक आर द ऑपरेशंस जॉब. द सेकेंड टाइप ऑफ जॉब्स आर एडवाइजरी जॉब्स एंड द थर्ड टाइप ऑफ जॉब इज़ द ब्रांच और द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ जॉब जिसमें आप ब्रांच को मैनेज करते हो. ऑपरेशनल जॉब्स जो होती हैं दैट इज़ फॉर टेलर और यूनिवर्सल बैंकर. एडवाइजरी लेवल जॉब्स होती हैं like a financial service representative, financial advisor, private banker and so on and so forth. इसके अलावा ब्रांच मैनेजर पे होते हैं ब्रांच मैनेजर एंड ऑफ कोर्स द मैनेजमेंट एट द कॉर्पोरेट लेवल विच इज़ द सेंट्रल लेवल. बट ऑफ कोर्स ये इतना सब कुछ एक वीडियो में डिस्कस करना वुड बी वेरी वेरी टफ. हेंस इन दिस फर्स्ट एपिसोड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेलर, यूनिवर्सल बैंकर, फाइनेंशियल सर्विस एडवाइज़र एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र. This we will cover in the first episode. In the coming or the second episode, we will discuss about the remaining ones.
अब बात करते हैं अबाउट म्यूचुअल फंड डीलरशिप्स और वहाँ पे क्या क्या रोल होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे उसके बाद वाले एपिसोड में, विच इज़ एपिसोड नंबर 3. And after that we will discuss about the different roles in insurance organizations in episode number 4, and in episode number 5 we will discuss about the investment dealerships and so on and so forth. चलो then let's start. So guys, सबसे पहले हम बात करते हैं टेलर की. तो टेलर is one of the most important persons in the bank. Well, why I say this is because ये first point of contact है कस्टमर और बैंक के बीच में. So कस्टमर के लिए बैंक उतना ही अच्छा है जितना अच्छा रिस्पॉन्स उसको कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम टेलर भी बोलते हैं, उससे मिलता है. वेल, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर, हैंस बैंक के लिए इस बंदे को प्रिपेयर करना और इसको ट्रेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज कस्टमर सर्विस आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए टेलर कैसे आपके कस्टमर के साथ बिहेव कर रहा है, टेलर को कितनी प्रोडक्ट नॉलेज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ट्रेडिशनली जो काम टेलर करते थे वो आज भी करते हैं, जो कि कैश ट्रांजैक्शन है, टू डील विद द कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ द कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कोई क्रेडिट कार्ड का बिल भरने आता है या मॉर्गेज का बिल भरने आता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसके अलावा इफ समबडी कम्स फॉर लेट्स से मॉर्गेज और म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, इन सब की सर्विसेज लेने के लिए, देन टेलर ऑफ कोर्स डज नॉट हैव द लाइसेंस टू सेल इन कैनेडा. इसीलिए इन सारे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं बैंक में, जिनके पास एडवाइजरी लाइसेंस होते हैं, द टेलर हैज़ टू सेंड द कस्टमर्स टू दीज पीपल. हैंस द टेलर ऑल्सो नीड्स टू हैव द नॉलेज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अगर टेलर को पता ही नहीं होगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कि कंज्यूमर किस बारे में बात कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली किसको भेजेगा, कहाँ पे रेफर करेगा, इज ऑब्वियसली बिकम्स अ प्रॉब्लम. So hence teller becomes one of the most important persons in the bank, and of course the first point of contact between the customer and the bank. अब बात कर लेते हैं टेलर की सैलरीज के बारे में. टेलर की सैलरी यूजुअली होती है फुल टाइम या पार्ट टाइम. सबसे पहले बात करते हैं फुल टाइम की. फुल टाइम सैलरी इज समवेयर अराउंड $30,000 और समटाइम्स लिटिल हायर, समटाइम्स लिटिल लोअर. मेरा सोर्स ऑफ सैलरी इज ऑफ कोर्स वेबसाइट्स, और कुछ नहीं है. अगर आप गूगल पर जाते हो, टेलर या फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को टाइप करते हो, यू विल ऑब्वियसली गेट डिफरेंट वेबसाइट्स सच एज लिंक्डइन या ग्लासडोर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो कि पुराने एम्प्लॉयज़ या करंट एम्प्लॉयज़ के एनोनिमस फीडबैक के बेस पे दे गिव यू सम फिगर. सो मेरी भी रिसर्च जो है वो बेसिकली वहीं से ही आई है. इसके अलावा यू ऑल्सो हैव पार्ट टाइम जॉब्स एज अ टेलर और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव. Usually it is somewhere between $14 to $16 per hour depending on के आपकी क्या seniority एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या आप कौन सी जोग्राफी में काम कर रहे हो. बट मोटा मोटा हम $13 से $14 मान के चले थे ऑन एन एवरेज पर आवर, एंड इट इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव फॉर स्टूडेंट्स. सो गाइस, जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड हेंस वर्किंग इन अ बैंक एज अ पार्ट टाइम with an average salary of somewhere around $14 an hour becomes something which is very very good for the students. Now usually students को 20 hours मिलते हैं in a week to work, and hence you can actually calculate that you can actually make somewhere between $1,200 to $1,500 a month, which is a good amount of money along with your studies. ये तो खैर टेंजिबल डिफरेंस हो गया. इनटेंजिबल डिफरेंस ये है कि यू एक्चुअली स्टार्ट नोइंग अबाउट बैंकिंग, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ बैंकिंग. यू ऑल्सो नो हाउ यू कैन राइज इन अ बैंक. यू विल नो पीपल इन अ बैंक, एंड इफ यू वर्क रियली वेल, यू वांट टू मेक अ करियर इन द बैंक, दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट जॉब यू कैन एक्चुअली लैंड अप इनटू. अब बात करते हैं यूनिवर्सल बैंकर की. जो टेलर एज अ कॉन्सेप्ट हुआ करता था, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द पास्ट. वाई आई से दिस इज बिकॉज पहले होता था कि आपके पास एक टेलर है, कस्टमर वॉक इन करता है, टेलर उसको थोड़ा बहुत हेल्प करता है, एंड यू नो कैश का ट्रांजैक्शन करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट इन द न्यू बैंकिंग सिस्टम, एज द बैंकिंग सिस्टम इज इवॉल्विंग, यूजुअली क्या होता था, देयर आर 3 रोल्स इन द बैंक विच आर प्राइमरीली टेलर, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एंड अ पर्सनल बैंकर, जो कि धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए थे. सो टेलर यूजुअली वही काम करता है जो मैंने आपको बताया. कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इज बेसिकली telling the customer where to go and understanding the needs of the customer when the customer walks into the bank. And third is a personal banker. Last decade or so, there is a concept of relationship banking which has come up. कि अगर आपके पास आप एक बैंक में एक अकाउंट होल्ड करते हो, अगर आपको कोई भी बैंकिंग नीड है,
so that relationship manager is assigned to you, and a consumer can contact the relationship manager for any banking need. Well, ये 3 रोल जो है वो इवॉल्व हुए थे. इसका एक हाइब्रिड रोल जो है वो आजकल बैंक में आने लग गया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल बैंकर. यूनिवर्सल बैंकर जो है वो ये तीनों काम करता है, एंड हेंस ही बिकम्स समबडी हु इज़ very very good in terms of banking knowledge, and he is the person who is very good in customer service, and he can also do the role of a teller. Well, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सैलरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं एज अ यूनिवर्सल बैंकर. इट बेसिकली मीन्स दैट एज अ बैंकर यू बिकम अ पर्सन वेयर अ कंज्यूमर कैन गो फॉर एनी प्रोडक्ट to you, and he can lead you to the person in the bank who can help you in terms of that particular product. अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, तो अगर एक कस्टमर आ रहा है मॉर्गेज के लिए, तो पहले वो टेलर के पास जाएगा, टेलर उसको मे बी मॉर्गेज डिपार्टमेंट में भेजेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. हाउएवर, अगर एक कस्टमर बैंक में आता है, यूनिवर्सल बैंकर उसके पास जाता है, तो यूनिवर्सल बैंकर का कस्टमर हो जाता है वो. सो इफ़ ही वांट्स एन इंश्योरेंस और इफ़ ही वांट्स अ मॉर्गेज, whatever he wants, he takes him and takes care of the customer till the end. मतलब कि जब तक उसको मॉर्गेज या मिल नहीं जाता, और till the time the customer is satisfied, and he has to own that customer even after the services are done. That person is basically called a universal banker. So now, since this role is evolving in the bank, this is a mobile role, he can travel to the customers and so on and so forth. Hence this concept of a universal banker is evolving as a new thing after the teller. अगर हम सैलरी की बात करते हैं, तो यूनिवर्सल बैंकर की सैलरी इज समवेयर बिटवीन $32,000 to $40,000 पर ईयर. यूजुअली मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश करी, लेकिन पार्ट टाइम मेरे को कोई जॉब यूनिवर्सल बैंकर की मिली नहीं है. अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की. इफ़ यू आर ग्रेजुएट, देन यू कैन एक्चुअली डू द रोल ऑफ अ टेलर और ऑफ अ यूनिवर्सल बैंकर. However, if you want to go beyond the role of a teller and a universal banker, then of course you need to do some kind of an education courses, and कुछ experience होगा तो better है. So somebody who is coming to Canada with an experience, and he wants to start off their career not as a teller or as a universal banker, then obviously you can do some kind of courses and have a little edge. However, it might be that you have to start your career as a teller or a universal banker. However, वो courses कौन से हैं? तो अगर आपने टेलर या मॉर्गेज का रोल कर लिया है, so there are 2 courses which will take you to the next level, which is the advisory services. Advisory services, जैसा कि मैंने आपको PPT में भी दिखाया था या प्रेजेंटेशन में भी दिखाया था, advisory services usually जो होती हैं, they are of different types, but there are mainly of 3 types. One is the financial service advisories, and the second is your lending advisories. फाइनेंशियल सर्विस एडवाइजरीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, लेंडिंग के बारे में नहीं करेंगे. तो फाइनेंशियल सर्विस एडवाइजरीज में 2 रोल्स होते हैं. पहला जो रोल होता है दैट इज फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा रोल होता है फाइनेंशियल एडवाइज़र. फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, दैट यूजुअली शुड हैव एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 कोर्सेज, और बोथ द कोर्सेज, और एटलीस्ट वन कोर्स विच आई विल टेल यू अबाउट. तो द पहला कोर्स है दैट इज IFC, which is Investment Funds in Canada. Second course is CSE, which is Canadian Securities Course. ये जो दोनों कोर्सेज होते हैं, ये CSI.ca पे अगर आप जाओगे तो आपको ये मिल जाएंगे. CSI.ca is Canadian Securities Institute.ca of course, और Canadian Securities Institute is one institute which is recognized by almost all the banks in Canada, where you can do some courses, and these courses are recognized. सबसे पहले हम बात करते हैं IFC की. If I talk about IFC as a course, मैंने ये कोर्स किया हुआ है, मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई थी which is this. You can check this video out from my channel page to get details about my experience. Let me tell you a little brief के एग्ज़ाम क्या होता है, and so on and so forth. IFC is Investment Funds in Canada, which also means कि आपको ये कोर्स करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके बेस पे आप लाइसेंस ले सकते हो टू सेल म्यूचुअल फंड्स इन कैनेडा. Well, on the basis of this, like I told you, you can become a financial service representative in a bank, and उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ. कोर्स इज़ यूजुअली 1 year लॉन्ग. जब आप रजिस्टर करते हो उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना होता है. इट इज़ अ सेल्फ स्टडी, सेल्फ पेस्ड कोर्स. इफ़ आई टेल यू माई एक्सपीरियंस,
इट टुक मी अराउंड 1 month टू क्लियर द एग्ज़ाम, बट मैं एक्सक्लूसिवली वो ही कर रहा था, इसलिए मैं शायद कर पाया इतनी जल्दी। अगर आप बात करते हो कि हाउ लॉन्ग इट शुड इट टेक फॉर यू, अगर आप काम कर रहे हो साथ साथ तो मे बी अराउंड 3 or 4 months, बट उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट अगेन मेरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस है और सबका अपना कंफर्ट लेवल होता है। तो बट फॉर मी इट डिड नॉट टेक लॉन्ग एंड माई असेसमेंट इज़ दैट इट इज़ नॉट वेरी टफ। अगर आप 1 या 2 बार पढ़ लेते हो, यू कैन वेरी इजीली क्लियर द एग्ज़ाम। इसके अलावा जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है विच इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यू कैन सिट होम एंड गिव द एग्ज़ाम और टेक द एग्ज़ाम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, and hence it becomes a very lucrative offer for somebody who has not come to Canada as of now because of the pandemic, but you can still sit anywhere in the world and take the exam. Cost wise it costed me around $600 and hence ज़्यादा महंगा भी नहीं है क्योंकि कैनेडियन डॉलर्स है, तो आप इसको कहीं पे बैठ के भी कर सकते हो, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। and it will basically give you a shot at financial service representative role. The salary of a financial service representative is somewhere between $40,000 to $60,000. Again, आप सिर्फ financial service representative डाल के गूगल पर डालोगे तो आपको सैलरी मिल जाएगी। When you start working in a bank as a financial service representative, you have to have at least IFC or CSC. Once you have either of the two or at least CSC, then and also some experience in banking, then you get promoted to a financial advisor, जिसका रोल प्रिटी मच सिमिलर होता है फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से, लेकिन it is at a bigger magnitude because you start handling more customers, you are more experienced, and of course you are a CSC. What are the kind of products that CSC deals with is mutual funds तो है ही of course, इसके अलावा derivatives like I told you, equity, bonds, taxation products, etc. मोटे मोटे आपको सारे प्रोडक्ट्स का लाइसेंस मिल जाता है अदर देन द इंश्योरेंस एंड लेंडिंग प्रोडक्ट्स, एंड हेंस यू बिकम अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर अगर आप फाइनेंशियल प्लानर का कोर्स भी कर लेते हो तो। कमिंग बैक टू CSC इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, आपको $1,200 के आसपास लगते हैं इसको करने में। इसका एक की जगह 2 एग्ज़ाम होते हैं और दोनों एग्ज़ाम में आपको मिनिमम 60% लाने होते हैं। IFC में एक एग्ज़ाम में आपको 60% लाना होता है, हेंस इसमें जो कोर्स मटेरियल है वो भी ज़्यादा होता है, प्रिपरेशन टाइम भी ज़्यादा लगती है, एफर्ट भी ज़्यादा लगता है, एंड क्योंकि प्रोडक्ट्स म्यूचुअल फंड्स के अलावा और भी होते हैं तो समझने भी टाइम लगता है, एंड इट बिकम्स अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट आई वुड से, बट इट इज़ नॉट समथिंग विच कैन नॉट बी डन। हर बैंकर जो कि एडवाइजरी लेवल में फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइज़र भैया ब्रांच बैंकिंग में जाना चाहता है उसको ये कोर्स तो करना ही पड़ता है। अगर हम सैलरीज के बारे में बात करें कि व्हाट आर द काइंड ऑफ सैलरीज फाइनेंशियल एडवाइजर्स ड्रॉ, दे यूजुअली ड्रॉ समवेयर बिटवीन $50,000 to $70,000, या ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, बट मोटा मोटा इतना ही होता है। ओके गाइस, समराइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी हो गया और लंबी वीडियो हो गई है। तो सबसे पहले होता है बैंक के अंदर टेलर की जो जॉब होती है उसको हम कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, और इसकी जो सैलरी होती है वो पार्ट टाइम भी होती है और फुल टाइम भी होती है। फुल टाइम अराउंड $30,000 होती है। इसके बाद आता है यूनिवर्सल बैंकर की जो सैलरी होती है दैट इज़ समवेयर अराउंड $32,000। अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जिसमें आपको 2 कोर्स करने पड़ते हैं विच आर CSC एंड IFC, देन यू बिकम फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जिनकी सैलरी अराउंड $40,000 प्लस होती है, या थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, बट मोटा मोटा $40,000। इसके बाद आफ्टर सम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देन एंड दीज कोर्सेज विच आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, यू बिकम अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सैलरी इज़ $50,000 प्लस। नाउ इसके अलावा और भी रोल्स होते हैं जो कि हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली मॉर्गेज और मॉर्गेज सर्विसेज के बारे में। So in case you are interested in that, do watch that video also, and if you liked my effort of researching this entire thing and presenting this entire thing to you, do give me a thumbs up, do subscribe to my channel, and please अगर किसी और के को आप जानते हो जिसको इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या ये सारी चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, स्टूडेंट या एनीबडी एल्स, देन प्लीज़ आप ये वीडियो उसको फॉरवर्ड करो, एंड do stay tuned for the next video, and I will definitely try to come up with more roles and more informative videos. Stay tuned and stay safe because आजकल तो कोरोना वायरस भी चल रहा है। Thank you so much for watching.